यहाँ पर सब लोग नोट गिन रहे थे किसके पास कितने प्रेत और अच्छी बीवी, सिर्फ काल्पनिक। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। मेरा समय चला गया अब। He has been a star on cricket fields and he has been a star on Twitter these days. And now he's coming with his fun days and he is none other than Virendra Sehwag. So thank you so much for joining us, sir. First of all, I was watching the shows of yours you sent us, and it was great watching your fun days. Now you're coming and going ahead and giving it on yourself rather than giving it on Twitter handle. So how is this transition for you from cricket pitch to coming and acting in a web series and giving your fun days out there? Yeah, I always had in my mind, and I always gave one-liner when I was attending the press conferences while playing. And when I'm retired, so I start writing something on Twitter, and then I started commentary and saying some words in commentary, one-liner. It became very popular. The people who are following me on Twitter and Facebook, they only ask me that, why not do you start your own channel or maybe your web series? So then I got the idea, and then I started this fundas because in journal life, in Aam Aadmi, they all have questions: how to lose weight, what to do when your son is not studying, and on how I'll show confidence when going to a 5-star hotel. So I took those questions and give answers and give one-liners at the end, and gave them a story, what I felt about that questions, and give them some cricketing stories and some examples, exactly, so they can motivate through my story. So of course you said ki your fans have been waiting for all these things and they have been demanding to you, but what do you think, were you this witty since childhood? आपको बचपन से था ऐसा, या अभी एकदम आप जैसे क्रिकेट फील्ड पे आने के बाद? See, I did lot of things in dressing room, like commentary, copying Ravi Shastri, Sunil Gavaskar, or other Maninder Singhs, and yes, we chat in the dressing room and we talk about a lot of fun things. So there was there in my mind, the humor was there. Even I was talking to my friends or talking to press, but I never thought that I come up with this idea that Viru ke Fun Days and do a web series. But a couple of friends helped me in this to organize the web series. One of Vikram Sate, another Amritanshu Gupta, also who actually sat with me, and we wrote the script and we did this. So this thing about your dressing room chats, I've heard a lot of things about it. So of course मैं आपका एक इंटरव्यू भी देख रहा था, उसमें भी आपने बताया कि ड्रेसिंग रूम में आप काफ़ी शांत रहा करते थे. जितने आप आक्रामक थे क्रिकेट फील्ड पे, उतने आप शांत रहते थे, ऐसा आपके बारे में कहा जाता है. एंड सचिन तेंदुलकर जी के बारे में भी यही कहा जाता है कि ही वॉज वेरी नॉटी इनसाइड द ड्रेसिंग रूम, बट बाहर जो एक वो महान आदमी है, वो महान प्लेयर, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बच्चा है. तो वो बच्चा आपके अंदर भी था और उनके अंदर भी. तो क्या ऐसी कोई मस्ती होती थी? सभी के अंदर होता है बच्चा, आपके अंदर भी होगा, बट बिकॉज ऑफ आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वहाँ आपका बच्चा बाहर नहीं निकलता. बट लेकिन अगर आप अपने स्पेस में हो, अपने कमरे में हो, तो आपका वो बच्चा आपके अंदर से बाहर आता है, आपके ख्याल सब बाहर आते हैं. और जब आप कुछ लिखते हैं ट्विटर पर, तो आप उसी अंदाज में लिखते हैं. और शायद सेफ़ एनवायरनमेंट जो होता है वो वही होता है जो आपका स्पेस होता है. अगर आप उस अपने स्पेस से बाहर हैं तो वो सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं है. तब आप ना वहाँ कुछ पब्लिकली बोल सकते हो, ना आप कुछ लिख सकते हो. तो जब मैं लिखता भी हूँ तो ये सोच के लिखता हूँ, ध्यान में रखता हूँ कि किसी की भावनाओं को हर्ट ना करूँ. और जो आजकल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ जिसे लोग पसंद करें, ह्यूमर हो, थोड़ा हंसें, तो बेहतर है. वैसी ज़िंदगी में इतने दर्द हैं, इतनी टेंशन्स हैं, सो उनके बीच में अगर मैं ऐसा कुछ लिख सकूं ताकि वो हंस सके और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. और आपने अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया डीमोनेटाइजेशन, आपने उसके बारे में भी ट्विटर पे लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वहाँ पे लोग वोट्स काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग नोट्स काउंट कर रहे हैं. तो वैसा आपको अभी भी लगता है कि अभी मैंने भी क्या वो गलत लिखा था? नहीं आपने उस दिन वो हो रहा था. नहीं वहाँ पर वोट गिने जाने रहे थे. यहाँ पर जैसी बैन हुई नोट, तो यहाँ पर सब लोग नोट गिन रहे थे किसके पास कितने, कैसे चेंज कराएंगे, क्या होगा. तो ये हर एक आम आदमी की समस्या थी जब से नोट बंद हुए थे. तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए. नहीं वो बिल्कुल आपने सही लिखा. बट आपको लगता है कि अभी भी वो जो गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी लिखी है वो सही है? देखिए, गवर्नमेंट को चुनता कौन है? गवर्नमेंट को हम ही लोग चुनते हैं. आम आदमी वोट देता है, तब गवर्नमेंट जब कोई भी पार्टी जीतती है, और वो
पावर में आती है और जब वो कोई भी डिसीजन लेती है तो उन लोगों को ध्यान में रख के लेती है। बिल्कुल। तो शायद ऐसा ही गवर्नमेंट ने किया और मुझे लगता है कि वो अच्छा डिसीजन था। जी बिल्कुल। और जो वीरू के फंडे है, ये शो का नाम है और आप इस पे बहुत सारे फंडे देंगे, वो कौन सा इंसान है वीरू के लाइफ में जो वीरू को फंडे देता आया है आज तक और वीरू अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैक करता हुआ है आज तक? देखिए, मेरा एक मानना है कि मैं हमेशा जो भी चीज़ मिली मुझे, मैं उससे खुश रहा हूँ। मैंने कभी डिमांड नहीं की कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए। मुझे भगवान ने जो दिया मैं उससे खुश रहा हूँ। सब लोग कहते थे मुझे 10,000 रन बनाने चाहिए थे, बट मैं अपने 8,000 रन से भी खुश हूँ। सब लोग कहते थे मुझे शायद 34 से ज़्यादा शतक बनाने चाहिए थे, बट मैं अपने 23 शतक से खुश हूँ। तो मुझे खुशी मिली जो मैंने किया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं उनसे फंडा लूँ और खुश रहूँ लाइफ में। बट ऐसा कई बार मोमेंट आता है कि लाइफ में एक होता है कोई सपोर्टिंग आपकी फैमिली मेम्बर, आपका कोई, देखिए ज़रूर आप अपनी माँ से बहुत प्रभावित हैं, आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ होती है, आपको सपोर्ट करती है। देखिए, मैंने वो टाइम देखा हुआ जब मेरी फैमिली सिर्फ 1,000 रुपये में गुजारा करती थी। मेरे 3 भाई बहन थे, मेरे फादर मदर थे नजफगढ़ में, तो 1,000 रुपये में महीने में क्या आता है? बिल्कुल, उस समय तो वो समय भी मैंने देखा हुआ है और आज वो समय भी है कि 1,000 रुपये तो शायद मेरा बेटा 1 मिनट में खर्च कर देता है। बिल्कुल। तो समय बदलते देर नहीं लगती, लेकिन जो लोग हैं जो आपके साथ जुड़े रहते हैं वो काम आते हैं। जो आपके रिलेशन बन जाते हैं, जो आपके यार दोस्त बन जाते हैं उस समय, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आते हैं। और मतलब पेरेंट्स ऐसे हैं जो आप अच्छा करें या बुरा करें, आप तो उनके लिए अच्छा ही हैं। जी बिल्कुल। तो जितने भी शायद जिनको सज़ा होती है, जो जेल जाते हैं, उनके भी माँ बाप हैं और वो बच्चे उनके लिए बहुत अच्छे हैं। भले ही चाहे कोर्ट उन्हें सज़ा सुनाती है, भले ही चाहे हमारा समाज उन्हें चोर कहलाता है, बट लेकिन वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी उन माता पिता की नज़र में अच्छे हैं। तो माता पिता रहते हैं, लेकिन जो उस समय जब आप बढ़ रहे होते हैं और आपका साथ देते हैं, वो आपके यार दोस्त, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका बुरा और अच्छा दोनों टाइम देखा हुआ। और वीरू के फंडे में भी आपके यार दोस्त आपके साथ ही बैठ के ये शो कर ये वही दोस्त हैं सर, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। क्रिकेट खेल लिया है। मिथुन मन्हास है जो दिल्ली से खेले हैं, मनोज मुदगिल यूपी से, राजू शर्मा JNK से। तो इन्हीं के साथ मैं दिल्ली में क्रिकेट खेला हूँ, अंडर 19 खेला हूँ, ONGC के लिए खेला हूँ, दिल्ली के लिए खेला हूँ, अगेंस्ट भी खेला हूँ। तो ये दोस्त हैं और इनके भी वही सवाल थे। उनको लगा शायद मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, बड़ा प्लेयर बन गया हूँ, तो उनको अच्छे से जवाब, की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बट ऐसा होता नहीं है, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ घर में। तो और आप जो फंडे अपने दोस्तों को दे रहे हैं इस शो पे, क्या आपको खुद भी वही फंडे आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में? कि देखिए, मैंने दिए तो दिए हैं, लेकिन जब मेरी बीवी भी देखेगी तो मुझे भी वो कुछ ना कुछ फंडे जरूर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा था। और तो कहना बड़ा आसान है कि भूत प्रेत और अच्छी बीवी सिर्फ काल्पनिक है। और ऑफ कोर्स सर, ये तो हम मानते हैं कि जो आप वीरू के फंडे, जो ये शो आ रहा है, इसका कहीं ना कहीं एक श्रेय ट्विटर के, आपका जो एक्टिव आप ट्विटर पे रहते थे और जो वन लाइनर्स आपने एकदम से डिलीवर करने शुरू किए वहाँ ट्विटर पे, तो काफ़ी उसका क्रेडिट जाता है उसको। तो फैंस का बेसिकली वो उम्मीद करते थे कि मुझसे जो मैं लिख रहा हूँ शायद ऐसा कुछ वेब सीरीज़ भी बनाऊँ जहाँ की वो देख सके। तो अब ये वेब सीरीज़ निकल गई है, तो आपको देखना है तो आप view.com पर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं व्यू ऐप, और वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 5 फंडे हमने कल लॉन्च किए थे, एक आज लॉन्च किया है, तो अब आगे से हर एक दिन एक फंडा नया लॉन्च करेंगे। तो टोटल 15 फंडे हमने बनाए। बिल्कुल। और ये जो मतलब आपका एक क्रिकेटिंग फील्ड का, क्रिकेटिंग करियर का एक बोला जाता है कि जो आपने मोहाली में खेला था, मुल्तान का सुल्तान, आपको नाम मिला वहाँ से, तो ट्विटर की जो ये आपकी इनिंग चल रही है, क्या उस पर मतलब आपको लगता है ऐसा कोई एक इम्पॉर्टेंट मतलब आपका एक कॉन्वर्सेशन हुआ किसी के साथ जो एकदम बवाल मच गया जिसकी वजह से, और लगा कि नहीं यार ये तो अलग ही लेवल पे ले गए हैं वीरेंद्र सहवाग जी? देखिए, मैंने कभी ट्विटर पे किसी के साथ लड़ाई नहीं की, मैंने सिर्फ अपना व्यू रखा है। किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा। लेकिन कोई फनी आपको लगा कि आज मैंने किसी से? देखिए, मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी तारीफ करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे भी फैन हैं जो मुझे नहीं चाहते और मेरी बुराई करते। तो अगर आप सेलिब्रिटी हो तो आपको अच्छा और बुरा दोनों सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर सिर्फ आप अच्छा सुनोगे तो फिर आप जब बुरा लिखा जाएगा तो आप जी नहीं पाओगे। और ऐसा आप देखते हो सर ट्विटर पे और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो लोग इस तरह की नेगेटिव क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाते, तो आप उनको अगर अपने वीरू के फंडे के स्टाइल में अगर कोई एक फंडा देना चाहें तो क्या देंगे? जी और जीने तो आपको क्या पड़ी, अगर आपके बारे में कोई अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, तो बेसिकली आपके कान सिर्फ अच्छा ही सुनना चाहते हैं, बुरा नहीं सुनना चाहते उसके लिए। ठीक। और सर मैं आपसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो फैंस की तरफ से आते रहते हैं, और फैंस को काफ़ी इंटरेस्ट होता है हमारी सेलिब्रिटी के कि जो जिनके हम फ़ैन हैं उनके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। तो 3-4 छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, तो आपको चूज़ करना है बेसिकली। तो पहला क्वेश्चन ये कि छोले भटूरे या वड़ा पाव? छोले भटूरे। योगा या जिम? योगा। लग्जरी कार आपके पास कौन सी है इस टाइम पे?
एक ही है, Q7। Q7, Audi Q7 जी। और फेवरेट मोबाइल ऐप आपका कौन सा है जो आप ट्विटर के अलावा, ऑफ कोर्स ट्विटर हम सब जानते हैं आपका फेवरेट मोबाइल ऐप? फेसबुक। और ऐसी कोई कंट्री, क्योंकि आप क्रिकेट ग्राउंड्स पे गए हैं, आप अलग अलग कंट्रीज में, ऐसी कोई कंट्री जहाँ आप जाना चाहते थे और अभी तक आप नहीं जा पाए? चाइना। ट्विटर पे सचिन और जो सचिन जी की जो इनिंग रहती है वो थोड़ा कम एक्टिव हैं, ज़्यादातर वन लाइनर्स वगैरह नहीं देते। वो भी अच्छे खासे एक्टिव हैं, वो भी हर जब देते बर्थडे हैं विश तो करते हैं, भी अपने फुटबॉल टीम के साथ अपनी पिक्चर क्लिक करते हैं, अपडेट्स करते हैं, तो ऐसा नहीं है। रिसेंटली उन्होंने आपको ट्विटर पे नॉकआउट कर दिया। उनकी एक अलग सोच है, वो अपनी सोच के अनुसार लिखते हैं। बिल्कुल। तो अगर सब वीरेंद्र सहवाग बन जाएंगे तो फिर वीरेंद्र सहवाग को कौन पूछेगा? और फिर वीरू के फंडे कैसे मिलेंगे? जी बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर, मतलब हम लोगों को लगता है कि ठीक है आपको रिटायरमेंट आपने ले लिया और ये, बट जो भी देश को सर्व करता है उसको एक कहीं ना कहीं फील रहता है कि मैंने देश के लिए कुछ किया है। तो आप अपने आप पे कितना प्राउड फील करते हैं इस चीज़ के लिए कि मैंने देश के लिए कुछ ऐसा किया है? मैंने देश के लिए कुछ नहीं किया सर, मैंने अपने लिए किया, अपना नाम कमाया, अपना गेम खेला है। बिल्कुल। वो देश की टीम थी उसके लिए खेलता था, लेकिन देश के लिए कौन करता है? देश के लिए फौजी करते हैं, देश के लिए पुलिस वाला करता है, वो लोग जीते मरते हैं देश के लिए, हम लोग तो कुछ भी नहीं करते। बट रिसेंटली सर आपने एक ट्विटर पे कैंपेन रन किया था, रन सतीश रन। वो कैंपेन से मैंने खुद भी फॉलो किया और काफ़ी अच्छा लगा कि इस तरह की आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपकी वजह से एक उसको आर्टिफिशियल लेग मिल पाया, वो चल पाया। तो ऑफ कोर्स वीरू का फंडा कहीं ना कहीं काम आया है उसके पीछे कि आपने उनको हेल्प किया। प्लान ये था कि हम लोग, अगर सोच ही आई थी कि अगर किसी फौजी भाई को या किसी पुलिस वाले को अगर एक्सीडेंट हो जाता है या उसका हाथ या पैर चला जाता है, उसको हम लोग सपोर्ट करें, उसको हम लोग नकली आर्टिफिशियल पैर या आर्टिफिशियल हैंड लगा के दें। तो मतलब हम तो ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए, उन्होंने जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी लाइफ उन्होंने देश की सेवा के लिए लगा दी, उसमें वो इंजर्ड हो गए, तो अब हम तो उनके लिए सर भी बहुत छोटी सी चीज़ है हमारी बात है। बट सर आपने बहुत वो एक नोबल कॉज है, आपने उसको फुलफिल किया। सर बहुत लोग करते हैं लेकिन कुछ लोग बताते नहीं हैं, कुछ लोगों का पता नहीं चलता है, कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट मुझे ये था कि मुझे उसकी मदद करनी थी और उसकी मदद मैं चाहता था कि मैं ही नहीं, सारा भारत करे। और आपने वो, मेरे लिए 7.5 लाख रुपए देना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि उस मुहिम में सारा देश जुड़े, तो सबकी सोच बदले कि आपको डोनेट करना चाहिए। जितना भी आप कमाते हो, मैंने जैसे डिसाइड किया कि मैं 5% अपनी कमाई का अगर डोनेट करूँगा तो शायद बहुत लोगों को मदद कर पाऊँगा। तो ऐसे ही हर बंदा अगर ये सोच ले कि मैं सिर्फ 5% डोनेट करूँगा या 2% डोनेट करूँगा या जो भी उनका है, अगर वो डोनेट करूँगा तो बहुत लोगों को मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो सर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि मैंने पढ़ा था एक इंटरव्यू में भी आपका, मैं देख रहा था, उसमें भी आपने बताया कि एक फेयरवेल अगर मतलब मुझको दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जब भी अगर दिल्ली में कोई मैच हो मिले, तो मैं ये जानना चाहूँ अगर आपको एक ऐसा फेयरवेल मिलता है या लेट्स सपोज कि आज अगर आपको एक ऐसा फेयरवेल मिले, तो एक लाइन में अगर आपको अपना क्रिकेट करियर सम अप करना हो एक वीरू के फंडे स्टाइल में, तो कैसे सम अप करेंगे? किसी गाने से सम अप करेंगे या ऐसा रहेगा कि एक लाइन में अपनी तरफ से? मतलब एकदम सवाल का जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है, बट मैं कहूँगा कि शायद अगर एक गाना जो मेरा फेवरेट है, जो मैं हमेशा गुनगुनाता हूँ, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल की तरह नली, मेरा समय चला गया अब। बिल्कुल, तो एक बार ये गा दें और फिर हम ख़त्म करें। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। And this was Virender Sehwag with us. So do watch Viru Ke Fande on VU.com, and this was Deepak signing off for India.com.